First of all, I'm appealing you that you should be at your home. Don't go outside if it is not required, because you know that the pandemic is become very severe now. And you also knew this that our beloved father Rolfi D'Souza, has left this world due to this COVID. Okay, that means this is the third casualty for the school. Okay, and he's our manager. He's a very gentle person, and I just want a 2 minute silence from you all. Okay, please make 2 minutes silence. So it starts now. Thank you. Okay, class. Silence is over now. So may God give him heaven, and sit with him also, and he will definitely get a heaven. So in that note, I'm just requesting you that please don't go outside. Okay, it's very important. Thank you. Now, moving on, I have organized this class due to some reasons. Okay, this class is continued just because of that. Our syllabus is no, we have 17 chapters. Okay, and you know that the important thing is that we are going to very details. Okay, that's why it take lots of time. So I want to wrap up this syllabus, at least 30% syllabus during this vacation. Okay, before this vacation. So I'm just sending you the notes that is required. You have to write down the note on your computer register, and if you still find any problem, you will let me know. Okay. Now I'm going to discuss the new topic. On my previous class, I was discussing about the various types of softwares like operating system, interpreter, and all. Okay. Now I am going to tell you about application software. What is application software? Okay, we have discussed system softwares. Under the system software, we have discussed about operating system, interpreter, compiler, and assembler. Okay, so these are comes under the um, system software. Now we are moving to the next category, that is application software. Okay, I told you earlier that there are three types of softwares, that are system software, application software, and utility software. In system software, we have already discussed all types of software, that are operating system, compiler, interpreter, and assembler. Okay. So do you have any problem in that? यहाँ तो कोई समस्या है आप लोगों को? If you have any problem, you will let me know. Okay. Otherwise, I'm moving. I'm just jump to the new topic. That is application software. I'm just moving to the new topic, that is application software. If you have problem, the point that we have discussed earlier, if you have any problem, you will let me know. Otherwise, I'm moving to the next topic, that is application software. Do you have any problem? Okay, I don't think so. You don't have. I think you don't have any problem. Now, the second topic is application No, software. sir. The application software. Okay. The second topic is application. Okay. What is application software?
So basically application software is designed for any particular purpose. Okay, just like this Zoom app is basically designed for cloud meeting, right? So this is comes under the application software. Okay, the software which is designed for particular task, in the software that is designed for any particular task or for particular operation is comes under the application software. I'm repeating again, any software which is designed for any particular task, just like this Zoom is designed to make a online class, right? Right. So there, the purpose of this app is making online class. Similarly, in our earlier classes we have learned the one more type of software, that is Photoshop, right? If you remember that in class 8 we have learned the Photoshop. So Photoshop is also an application software. Photoshop is used for designing purpose, right? So these are the application software. So application softwares are the softwares which are designed for particular purpose. Okay, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनका डिजाइन किया गया है, जिनको डिजाइन किया गया है किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए. जैसे अगर हम जूम की बात करें, जूम ऐप भी एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. क्यों? क्योंकि इसका यूज जो है हम लोग किस लिए करते हैं, एक प्रकार का कहते हैं क्लाउड मीटिंग के लिए, राइट? उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें आपके ये पबजी की, या जितने भी गेम्स आप लोग खेलते हैं, ये सारे के सारे कौन से सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. इनका रेंज बहुत लिमिटेड है. ये सारे सॉफ्टवेयर डिजाइन हुए एक पर्टिकुलर टास्क के लिए. वो पर्टिकुलर टास्क कोई गेम भी हो सकता है, कोई वर्ड प्रोसेस भी हो सकता है, कोई स्प्रेडशीट भी हो सकती है, कोई एप्लीकेशन भी हो सकता है, कोई पीडीएफ कन्वर्टर भी हो सकता है, पीडीएफ रीडर भी हो सकता है. ये सारी की सारी ऐप जो देख रहे हैं आप लोग अपने मोबाइल पे देखते हैं. इवन जीमेल भी एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है. ठीक है, समझ में आई बात? बताइए. Yes, sir. So what is if anyone asks, beta, what is application software? You just easily answer that the application software are the software which is designed to perform a specific task. Example, MS Word is designed to word process. Similarly, PUBG is designed to play a game. Similarly, this Zoom app is designed for cloud meeting, right? Got it? Yes, sir. Got it or not? Yes, sir. Got Sir, it? got it. Okay. Yes, sir. So this is the easiest way to understand this application software. So I'm just want to know, is operating system is a system software or application software? Sir? Operating system is a system software or application software? Tell me. Sir, system software. Okay. So Ronak, tell me, beta, your game, like what's your, I mean, I'm just telling you, this Google Chrome, this is what, application software or system software? Sir, application software. Very good. Why it is application software? Because it is just used to access the internet. Okay, got it? Yes, sir. Again, I'm just I just want one more question. Ali Hamza, beta. Ali Hamza. Yes, sir. Beta, tell me, what kind of software is this? Yes, sir. PowerPoint. PowerPoint कैसा सॉफ्टवेयर है? PowerPoint भी कैसा सॉफ्टवेयर है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही. बेटा, which kind of software is this MS PowerPoint? MS PowerPoint कैसा सॉफ्टवेयर है? Sir, application software. Application software. कैसा सॉफ्टवेयर है? Application software. Got it? Okay. Yes, Yes, sir. I want to tell you, application softwares are mainly two types. Application softwares are of two types. The first one is general purpose application software. general purpose application software. The next is customized
software. Customized software. Software. Got it? Got it or not? Sir, So got if it. anyone asks how Yes, many sir. types of application software, you have to answer it. There are two types of application software: generalized, general purpose application software और customized software. Okay. अच्छा, Yes. सबका भी एक इन चीजों को भी हम लोग डिटेल में समझते हैं. Okay, we will going to discuss in detail as well. Okay, but before that I just want to tell you that you have to watch the videos on a regular basis. Okay, all the recording are available. Okay, so you have to watch the videos. Okay, you should watch the video on regular basis. Yes, sir. चैनल सब्सक्राइब कर लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए. Yes, Now- sir. Now I'm going to discuss the software that is general purpose application software. So first of all, we will learn what is general purpose application software. What is this? General purpose application software. We are going to discuss this general purpose application software. Okay. Now, moving on. सबसे पहले ये होते क्या पहले समझते हैं. So these are the software is created by major companies for general purpose use. Each software has specific use, but anyone can purchase it and make us for without making and modify it. Just like बेटा ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं. जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है? बहुत कॉमन होते हैं. आपने एमएस वर्ल्ड का नाम सुना है? एमएस वर्ल्ड का, Yes, sir. एमएस एक्सेल Yes, का नाम sir. सुना है? मैंने पढ़ाया है, सब Yes, sir. बताया भी आपको. Yes, sir. एमएस Yes, sir. वर्ड, एमएस एक्सेल, ये फोटोशॉप, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. कैसे सॉफ्टवेयर है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर. Yes. जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? ये सबसे ज्यादा यूज में आने वाले सॉफ्टवेयर है. इसमें आप या तो आप उसको परचेज कर लीजिए आप बाहर से, है ना, मतलब परचेज करना, इसके लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, है ना, या आप इसका क्रैक्ड वर्जन भी यूज कर लेते हैं. हालांकि ज्यादातर लोग इसका क्रैक्ड वर्जन ही यूज करते हैं. तो आप इसको परचेज कर सकते हैं या कहीं से डाउनलोड कर सकते हैं आप, है ना, कहीं पे अगर अवेलेबल हो जाए आपको. तो ये जो है अगर ये अवेलेबल हो जाता है तो आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, ऐसी पायरेटेड कॉपीज मिल जाती हैं इजीली, तो उसको आप इजीली यूज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं. दे आर जनरली यूज्ड फॉर विदाउट एनी चेंजेस. इन सॉफ्टवेयर में आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये जैसा आप उसको वैसे ही यूज करने लगते हैं. जैसे एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है, फोटोशॉप है ना, और एनिमेशन सॉफ्टवेयर हैं. ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हैं, पीपीटी सॉफ्टवेयर हैं. ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो आते हैं किसके अंडर? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में. General purpose software are the software which don't require any kind of customization. We will directly use these softwares. Okay, these are very effective softwares. The companies are designed for the general purpose uses. Okay, जो कंपनी है उसको इसीलिए डिजाइन करती है ताकि आपको जर्नल काम में सारे हो जाएं. कट, कॉपी, पेस्ट, टेक्स्ट एडिट करना, इमेजेस बनाना, ओके, और पीडीएफ बनाना, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सारे के सारे सॉफ्टवेयर किसके अंडर आते हैं? जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में. समझ में आई बात बच्चों? Yes, sir. So if anyone asks, beta, what is general purpose software, you will answer that a general purpose software are the software which is designed to overcome or to look after our general needs, like word process, PowerPoint presentation, animation, and graphic designs. All these are the softwares are designed for our general users. Okay, so these types of softwares are called general purpose software. इस तरीके के सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, एमएस है ना, एमएस एक्सेल है, फोटोशॉप है. इसके अलावा और भी चीजें आती हैं. ठीक है, इसके बारे में इतना जानने की जरूरत नहीं, बस अब ये समझ लीजिए जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. इतनी समझ में बात आई आपको बच्चों? Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके ओके, चलिए हटा दें. इसके बाद नेक्स्ट Yes, टाइप का जो sir. सॉफ्टवेयर है वो है, नेक्स्ट टाइप का जो सॉफ्टवेयर है बच्चों वो सॉफ्टवेयर है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. अच्छा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का, अच्छा कस्टमाइज वर्ड से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड कस्टमाइज? आपने नाम सुना होगा अपने डे टू डे की लाइफ में.
कस्टमाइज कस्टमाइज कस्टमाइज, कस्टमाइज क्या चीज होती है? कस्टमाइज मतलब मिलना। कस्टमाइज मतलब सर कस्टमाइज क्या होता है? सर चेंज, मिलना। हाँ, सर मिलना मिलना। कस्टमाइज मींस चेंज इट्स। हाँ, सर ये आप बहुत सही बोल रहे हैं आप। एक्चुअली कस्टमाइज का मतलब होता है, मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ तो आप इसका हिंदी में इसका जो एग्जैक्ट मतलब होता है मैं बताता हूँ भी। तो द मीनिंग ऑफ कस्टमाइज इज दैट वी हैव टू डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस। ओके, किसी सॉफ्टवेयर को हम अपने हिसाब से बनवाते हैं, ठीक है? ठीक है, किसी के भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये बताइए पहले, बताइए। नो सर। अच्छा, आपने सॉफ्टवेयर कंपनीज के नाम सुने होंगे, राइट? सॉफ्टवेयर कंपनीज के नाम सुने आप लोगों ने? बहुत Yes, सारी sir. सॉफ्टवेयर कंपनी, बहुत सारी छोटे, देखो दो तरीके की सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है। एक तो होती है मल्टी लेवल मल्टीनेशनल, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। ओके, इसके अलावा कुछ कंपनीज होती हैं जो हम जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट है, राइट? उस स्कूल की वेबसाइट को किसी ने बनाया होगा, राइट? बच्चों ये बताइए, हमारे स्कूल की वेबसाइट है, उसको किसी ने बनाया होगा ना, कि अपने आप बन गई होगी वो? सर बनाया ही होगा। किसी ने बनाया ही होगा, किस बात है? कुछ अपने आप तो होता है, होगा। कुछ अपने आप होता है, नो सर। उसको किसी ने बनाया होगा। तो जिसने बनाया होगा, क्या वो कंपनी माइक्रोसॉफ्ट होगी? यस। नो सर। बनाया नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट तो नहीं होगी। कोई एक ऐसी कंपनी होगी जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाती है। सॉफ्टवेयर बनाती है कस्टमाइज, ओके? जैसे वेबसाइट्स हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर है जिसको हमें अपने हिसाब से बनवाना है। जैसे बिलिंग सॉफ्टवेयर, किसी की शॉप हो, किसी के पास बिलिंग सॉफ्टवेयर है कि नहीं है? किसी की शॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट? बिलिंग सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? जैसे पेमेंट होती है, उसमें सारे लिस्ट ऑफ आइटम्स आ जाते हैं, पेमेंट हो गई है, उसमें कितना रुपए पे हो गया, पेड एंड अनपेड, सब चीजें लिख करके आ जाती है, राइट? राइट और रॉन्ग, यही होता है ना बिलिंग सॉफ्टवेयर? Yes, sir. तो ये जो है सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। कैसे सॉफ्टवेयर? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। इनको जो है हम अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं, ओके? तो अगर मैं बात करूं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, तो दीज आर द सॉफ्टवेयर which is basically designed for our convenience. Okay, we can customize its feature, its interface, its look and feel. We can change all these things. Okay, हम इन सब चीजों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? In this customized software, got it? जैसे आप Yes, लोगों ने sir. देखा होगा बिलिंग सॉफ्टवेयर, सबसे कॉमन एग्जांपल है बिलिंग सॉफ्टवेयर का। बिलिंग सॉफ्टवेयर कितने लोगों ने देखा, ये बताइए मुझे आप लोग। सर हमने किसी की जॉब होती है, उसमें बिल निकल के आता है, बिल मशीन होती है, मशीन से जैसे उसमें बिल निकल के आता है, राइट? उसमें वो सारे होते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है? अगर आप लोग किसी शॉपिंग मॉल पे जाएं, शॉपिंग मॉल पे गए ना, यस सर। तो वहां पे आपको बिल मिलता है, राइट? वो प्रिंटेड बिल Yes, होता है। sir. वो एक्चुअली क्या होता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो अगर मैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर, सबने लेट आ रहे सो करके हैं। सब बहुत लेट आ रहे हैं बच्चों, बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है। अच्छा, एक बात मैं बताना भूल गया आपको, कल आपकी क्लास 11 o'clock होगी। कितने बजे होगी? 11 o'clock। कितने बजे होगी? 11 o'clock। टुमारो 11 ऑनवर्ड्स o'clock. क्लास विल बी एट 11 o'clock। ओके, जब तक क्लास चल रही है सिर्फ 11 o'clock होगी, ठीक है? इट इज अ Okay, sir. सॉफ्टवेयर which is designed for particular पर्पस। ओके, इसका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है, ओके? लाइक होटल बिल्स सॉफ्टवेयर, होटल बिल का सॉफ्टवेयर है ना, किसी रेस्टोरेंट का, किसी रेस्टोरेंट के बिल का सॉफ्टवेयर है ना, रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर। रेस्टोरेंट सॉफ्टवेयर, किस रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर है ना। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? बेसिकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। कैसे होते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो ऑल दीज आर सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइंड फॉर आवर कन्वीनियंस, इज कॉल्ड द कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है? गॉट इट?
गॉट इट और नॉट? Yes, sir. तो जितने भी बिलिंग सॉफ्टवेयर हैं, ये जो आपके HR मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। किसमें आते हैं? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। नोट्स आपको मिल जाएंगे, ओके, डोंट वरी। ओके सर। नाउ कल नोट्स आपको मिल जाएंगे सारे। थर्ड टाइप का सॉफ्टवेयर जो है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैंने 3 टाइप के सॉफ्टवेयर बताए थे। पहला वाला बताया था आपको, क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा बताया था आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। किसके बारे में बताया? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ओके। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बच्चों? यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी? रफ। हाँ, टेल मी। देखो बच्चों, यूटिलिटी का मतलब होता है एक किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए, ओके। तो जैसे कि आप लोगों ने ये एंटीवायरस के नाम सुने होंगे। डू यू हैव हर्ड द नेम ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का नाम सुना आप लोगों ने? एंटीवायरस बताइए। नो सर। एंटीवायरस का नाम नहीं सुना आपने? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? नो सर। Yes, sir, सुना है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं? बाय डिफॉल्ट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर is a small program that is provided the additional facility facility to operating by default. Utility software is a small program that provide the additional facility to program operating the computer system. बच्चों ये सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर? थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब अगर ये आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इनहांस करते हैं, अच्छा बनाते हैं, मगर जरूरी नहीं आपके पास ये सॉफ्टवेयर हो ही। जैसे आपके पास, आप लोगों को सुना होगा डिस्क क्लीनर, है ना? आपके पास एक आपके मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप क्लीन अप मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी क्लीन हो जाती है, राइट? होता ही नहीं होता है? यस सर। Yes, है sir. ना? ट्रैश क्लीन हो जाते हैं सारे के सारे। तो इस तरीके के जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली डिजाइंड होते हैं, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। किसमें आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में। ऑल द सॉफ्टवेयर which is used to improve the performance of your computer system or your mobile it comes under the utility software. अगर मैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करूं, इसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? इसमें सॉफ्टवेयर आते हैं, एंटीवायरस आते हैं। कौन से आते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं। कैसे आते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सॉफ्टवेयर आते हैं? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आते हैं। कौन से आते हैं? एंटीवायरस। जैसे आप लोगों ने आवाज, नॉर्टन, है ना, सिक्योर 360 डिग्री, इस तरीके के जो नाम सुने होंगे आप लोगों ने, ये सारे सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसके अलावा डिस्क क्लीनर आता है। कौन सा था? डिस्क क्लीनर आता है। डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर जितना ये फालतू की मेमोरीज को हटा देता है, ये जो अनयूज फाइल्स होती है उनको हटा देता है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्क फ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनर होता है। इस तरीके के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं।
बेटा बहुत ज्यादा समझने वाली बात कितनी है कि 3 टाइप के हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इसके अलावा क्या बोलते हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर। ओके, ये होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, मैंने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर व्हिच इज डिजाइन फॉर एनी पर्टिकुलर यूज। ओके, जस्ट लाइक जूम ऐप, इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसके बाद मैंने बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था कि दो सॉफ्टवेयर which is designed for general purposes like MS Word, MS Excel and PowerPoint presentation. All these softwares are comes under the general purpose software. And the next category, that is customized software. The customized software are the softwares which are designed for our customized uses. Okay, just like any billing software, any software for any hotel management software. So all these softwares are comes under the customized software. And these two softwares, customized softwares and general purpose softwares, are comes under the application software. Now the third type of software is the utility software. The utility softwares are the software which is basically improve the quality of the software. Okay, which is improve the quality of our computer system. So these type of softwares are called utility software. Got it? Yes, sir. Got it or not? Yes, sir. अभी कोई डाउट है ये बताइए। नो सर। अब आपका काम क्या है, मैं कल आपको इसके सारे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, टुमारो क्लास विल बी एट 11 o'clock, 11 बजे क्लास होगी। कोई अपने आप सब कुछ पढ़ के रखिएगा, कोई डाउट हो पूछिएगा मुझसे, बुक से कोई भी कहीं से भी डाउट हो चैप्टर नंबर 3 में। ओके, नोट्स आपको सारे नोट्स आपके बन गए हैं, कल आपको सेंड हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको हॉलीडे होमवर्क में बहुत सारा काम दिया था, उनमें से कोई डाउट आ रहा है आपको? No, sir. नो सर। चलिए ठीक है, तो कल आप लोग बुक से पढ़ के रखिएगा, कल आप लोग अपने डाउट पूछिएगा। इसके बाद अगर कल कोई डाउट नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ओके सर Okay, sir. हाँ पूछिए। सर सेम वर्क पावर पॉइंट में भी बनाना है और फाइल में भी बनाना है? हाँ नहीं, प्रोजेक्ट वर्क आपको सिर्फ उसमें बनाना है। प्रोजेक्ट वर्क बनाना, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है ना, पेज नंबर। अगर आप लोग कंप्यूटर के पेज नंबर खोलेंगे, ये प्रोजेक्ट वर्क पीछे दिया गया, पीछे की तरफ मैं बताता हूँ कहाँ पे आपको दिया गया कंप्यूटर का प्रोजेक्ट वर्क। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। ये देखिए, प्रोजेक्ट वर्क इन कंप्यूटर साइंस, ये लिखा हुआ प्रोजेक्ट वर्क इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर की बुक में पीछे की तरफ लिखा गया है, ठीक है। इसमें ये प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये बनाना है आपको। कंप्यूटर की बुक में सर, प्रोजेक्ट पेज नंबर 1 ये पूरा हार्डवेयर एंड पेज सॉफ्टवेयर, नंबर ये पूरा बनाना है आपको, ठीक है। पेज नंबर कहाँ तक? बताइए। ठीक है, कंक्लूजन तक बनाना, पूरा कंक्लूजन तक लिखना है, ठीक है। सर नहीं दिखाई दे रहा ढंग से, पेज नंबर बता ओके। दीजिए। पेज नंबर बेटा इसमें पेज नंबर 290, पेज नंबर 289, 290। ओके, ये पूरा फाइल में बनाना, पेज नंबर 289 और 290। ओके, Yes, sir. कंप्यूटर फाइल, प्रोजेक्ट फाइल में। ओके, गॉट इट? Yes, sir. यस सर। चलिए, थैंक यू क्लास। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर वीडियो यूट्यूब में कब तक प्रोवाइड हो जाएगा? क्या क्या क्या? सर वीडियो यूट्यूब में कब तक अपलोड हो जाएगा? बेटा 2-3 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, है ना। ठीक है, एक काम करना बेटा, सौम्यदीप एक बार आप फिर से सेंड कर देना मुझे, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक सर यू। वो वाला है क्लास वाला? क्या? सर ये क्लास वाला वीडियो? ये वाला, ये जो अभी अभी पढ़ा रहा हूँ, यस सर। मैं अभी सेंड कर देता हूँ, 15 आधे घंटे में। ओके सर। थैंक यू। Thank you.